together, first of all, celebrate and commemorate a very historic milestone that the city of Srinagar has collectively attained, collective, collectively attained yesterday, when we have been inscribed as one of the creative cities in the Creative City Network by UNESCO in the category of folk art and culture, folk art and craft. This has been a collective effort. पहले मैं आपको Creative Cities Network के बारे में थोड़ा बताऊं. It was established in 2004 to promote cooperation between various cities around the world which have certain unique cultural and artistic capabilities and are especially focusing and emphasizing on those. There are different categories in gastronomy, in heritage, as well as in arts and crafts, which we have qualified for. We are the only city in the country which has been included in the UNESCO Creative Cities Network. I want to congratulate everybody who has been involved in this. I remember how focused all of us were. I want to thank Principal Secretary R&B Shri Shailendra Kumar ji, Principal Secretary Industries Shri Ranjan Thakur ji, Commissioner Srinagar Municipal Corporation for his personal efforts in this, Mr. Athar Amir Khan Sahab, Director Industries Mr. Mahmood Ahmed Shah Sahab. I want to thank Convener Intact Kashmir Salim Beg Sahab and Chief Town Planner Iftikhar Hakim Sahab and the associated teams which made this possible. I remember we've tried once, I think it was 2018 and 19, and we did not succeed. We tried again and we alhamdulillah succeeded. This I want to just clarify that we did compete for this. We applied for this. We persevered for this. We convinced UNESCO that we deserve to be included amongst nearly 250 cities across the world in this prestigious list. मुझे याद है 2018 में पहली बार सलीम साहब मुझसे मिले और इनने मुझे बताया that we should apply to Creative Cities Network, and we did, but we didn't succeed that year. And then the next year, Athar Sahab was very focused on this, and I remember that he took a personal keen interest in this, and we again involved the Ministry of Human Resource Development, and SMC took a frontal primary role in this. So as the urban local body of Srinagar, I think this is also a milestone for Srinagar Municipal Corporation. I want to congratulate and thank INTAC. I want to congratulate and thank the Directorate of Industries and the Industries Department. I want to thank the Town Planning Department. I want to thank Srinagar Smart City Corporation and Honorable Lieutenant Governor, especially Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji for his support in this endeavor and for his encouragement that we should achieve this goal. I would also on behalf of the people of Srinagar like to thank the Honorable Prime Minister for his encouragement yesterday, for his acknowledgement yesterday, and for his keen interest in seeing a developed, holistically growing and evolving Srinagar. I am sure that our inclusion in the Creative Cities Network will pave way for the international curation and evolution of our arts and crafts. This is a big achievement and a big impetus for our local artisans, our craftsmen, and we will persevere together. We will take initiatives to ensure that Kashmiri local arts and crafts, which Srinagar is known for, Srinagar is the hub of the handicraft industry. We will all take initiatives now. Now we have attained our inclusion into the Creative Cities Network. Our work starts now. We want to make our arts and crafts
popular internationally. We want to incubate talent. We want to educate people about our arts and crafts. And an essential function of the Creative Cities Network is that there has to be cooperation between the 250 plus cities around the world. In the arts and crafts category, there are different cities around the world. We'll work with those cities. And I think, inshallah ta'ala, this is a milestone. This is one of the first milestones of this nature for Srinagar. We will attain further such milestones. Another such milestone, earlier this year was that our cleanliness rankings as per the Swachh Sarvekshan have gone in the top 40, top 30 in the country. I pray that we continue to work together for our city collectively. I want to congratulate the artisans and craftsmen of Srinagar city, every proud resident of Srinagar. Before I ask Athar Saab to explain the technical details of our inclusion in the Creative Cities Network, I think this is a big day for Srinagar. I also want to announce that we have decided to have a celebratory month to showcase this achievement. We will work with stakeholders, with artisans and craftsmen. There will be events, there will be collaborative initiatives, there will be showcased exhibitions over a period of a month or more, which will focus on this achievement and also educate artisans and craftsmen about what this means. At every event, a number of artists and craftsmen will be honored, showcased and highlighted for their contribution to the arts and crafts of Srinagar, because this day and this milestone predominantly and prominently belongs to them. I would invite, Athar Saab first, and then if Mahmood Sahab, Salim Sahab and Iftikhar Sahab want to share their views, I would invite Commissioner SMC, Mr. Athar Amir Khan Sahab, to share his views and also educate us with a little more technical elaboration about this achievement. Thank you so much. And सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। जैसे मेयर साहब ने कहा, ये शहरी श्रीनगर के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, चाहे वो इफ्तिखार साहब हैं, महमूद साहब की टीम है, इंटैक की टीम है, या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम है। काफ़ी सालों से जद्दोजहद चल रही थी, एंड फाइनली वी हैव बीन एबल टू मेक इट टू द लिस्ट दिस ईयर। ये प्राउड अचीवमेंट है कलेक्टिवली पूरे शहर के लिए, सभी लोगों के लिए हु हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। इसमें मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसका एक प्रोसेस क्या रहता है। किसी भी शहर का जो म्यूनसिपल बॉडी होता है वो एलिजिबल होती है इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए। एक डॉजियर बनाया जाता है, अपनी अपनी जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। इस जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसकी 7 कैटेगरीज़ हैं। उसमें एक आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, एक फ़िल्म है, एक गैस्ट्रोनॉमी है, इस तरह से एक डिज़ाइन है, एक लिटरेचर है, एक मीडिया आर्ट्स है। तो टोटल 7 कैटेगरीज़ हैं, और अपने अपने जिस सिटी को लगता है कि उनका स्ट्रेंथ उनका किसी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में है, उस कैटेगरी के हिसाब से वो अप्लाई करते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए एक बेहतरीन एक डॉजियर की ज़रूरत होती है, जिस डॉजियर को तैयार करने के लिए सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स दैट वी हैव हियर, इंटैक की पूरी टीम, हैंडीक्राफ्ट्स की जो है महमूद साहब के साथ में जो हैंडीक्राफ्ट्स की टीम है, या इफ्तिखार साहब व्हेन ही वाज वर्किंग विथ JK एरा, तब से कंसेप्चुलाइज हुआ था। वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी इसमें काफ़ी हद तक उस डॉजियर को कंसेप्चुलाइज उसको करने में मदद की है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट डॉजियर केप्ट ऑन गेटिंग बेटर, और उस फाइनली उस शेप में तैयार हो गया विच वाज एक्सेप्टेड बाय द यूनेस्को। इसके साथ साथ इसमें जो सिलेक्शन के लिए इट ऑल्सो नीड्स एंडोर्समेंट्स। सबसे पहले जो सिटी के मेयर होते हैं उनकी तरफ से इसमें एंडोर्समेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, स्टार्ट फ्रॉम देयर। इसके साथ साथ एक भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, दे हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इनको, इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को। ये एक संस्था है, ये कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कोऑर्डिनेट करता है यूनेस्को सेक्रेटेरिएट के साथ। सो फॉर्चुनेटली दिस ईयर जब श्रीनगर सिटी की एप्लीकेशन गई, इट वाज एंडोर्स्ड बाय इनको। इनफैक्ट 2 सिटीज़ का यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंडोर्समेंट गया था। वन वाज श्रीनगर फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट और ग्वालियर फॉर म्यूज़िक। ये 2 सिटीज़ का नॉमिनेशन इंडिया से गया टू यूनेस्को सेक्रेटेरिएट, एंड यूनेस्को हैज़ एक्सेप्टेड ओनली श्रीनगर्स नॉमिनेशन फॉर इंक्लूजन इन दिस प्रेस्टिजियस लिस्ट। अब जो the actual work actually starts from after this inclusion. जब inclusion के लिए कोई भी सिटी अप्लाई करती है, it commits lot of things to it. काफ़ी सारी कमिटमेंट की जाती है कि अगर हम क्राफ्ट्स एंड आर्ट की बात करते हैं या क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो क्रिएटिविटी को किस तरीके से शहर की डेवलपमेंट का एक सेंटर बनाया जाए। हाउ कैन क्रिएटिविटी बी मेड सेंट्रल टू द अर्बन डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी। श्रीनगर जहाँ का हमारा मेन जो इकोनॉमी देखें, इट्स नॉट एन इंडस्ट्रियल टाउन, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन दीज कल्चरल एस्पेक्ट्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट शहर के एक सेंट्रल हमारी एक्टिविटी के सेंटर में आर्ट्स एंड कल्चर है, लेकिन इसको किस तरीके से हम और बढ़ावा दें, हाउ डू वी प्रमोट इट फर्दर, दैट्स द जर्नी विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये प्लेटफॉर्म हमारे शहर को एक अपॉर्चुनिटी देता है दूसरे बाकी जो विभिन्न 249 सिटीज़ हैं या 250 सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने में, वो उनके साथ मार्केट्स के हिसाब से शेयर पार्टनरशिप करने के लिए। सो उस चीज़ को भी आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी स्टिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर हाउ डू वी हार्नेस दिस फॉर द बेटरमेंट एंड द बेनिफिट ऑफ द सिटी। और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि ये एक सुनहरा पल है। दिस इज़ अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर श्रीनगर सिटी। Going forward, it should take us further to prosperity, further to development in a sustainable way, in a way which respects the art, which respects the artisans, which respects the craftsmen and culture of the city. Thank you so much. Sir, I have a question. Sorry. Pehले, let's get views from everybody. Let's get introductory remarks from everyone. Let's get. किसी इसको पुश कर दो। शुक्रिया। मेरा नाम महमूद अहमद शाह है। मैं डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी हूँ। यहाँ पे जो है यूनेस्को क्राफ्ट सिटी की बात हुई, मैं थोड़ा सा क्राफ्ट पर्सपेक्टिव आप लोगों को दूंगा। जो हमारा शहर ख़ास है, हमारा काफ़ी जो है क्राफ्ट बास्केट काफ़ी डाइवर्स है और 50,000 से ज़्यादा लोग जो है आर्टिजन्स क्राफ्ट्स के साथ जुड़े हैं। और जो हमारे प्रैक्टाइजिंग आर्ट्स है, 10-12 आर्ट्स हैं जो श्रीनगर सिटी में प्रैक्टाइज किए जाते हैं। और यहाँ पे जब इतनी डाइवर्सिटी शायद इतनी छोटी सी जगह पे दुनिया भर में अगर देखें, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी छोटी सी जगह में आप नहीं पाएंगे। तो एक रीज़न ये भी बना कि इस लिस्टिंग को हासिल करने में हमारी जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ कोई अप्रैल मई के महीने में सलीम साहब के साथ, तो वहाँ पे हमको इस डोजियर में कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ी कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा रोड मैप क्या है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि लास्ट ईयर हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी आई थी और उस पॉलिसी ने हमको एक रोड मैप दिया है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो काफ़ी उस पॉलिसी की वसात से काफ़ी स्कीमें आई जो हमने इम्प्लीमेंट की है। जैसे हमारा एक स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें हम आर्टिजन्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं सोसाइटीज़ में, और हर साल 2000 सोसाइटीज़ हमको बनानी है। और इस साल भी जो है कोई 2-2.5 हज़ार सोसाइटीज़ बनी और कोई 10 करोड़ का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जाता है हर साल। उसके अलावा आर्टिजन क्रेडिट कार्ड पे काम हुआ, वहाँ पे भी जो है अनाउंसमेंट हुई। फिर हमारी एक और स्कीम आई कारखानदार स्कीम, जिसमें हमारे जो नेशनल आर्टिजन्स है या नेशनल अवार्डीज़ है, स्टेट अवार्डीज़ हैं, उनके कारखानों को नोटिफाई करके उनमें जो लोग सीखने आए और जो सिखाते हैं दोनों को स्टाइपेंड मिलता है। ये एक स्टेप था कि हाउ स्किल अपग्रेडेशन कैन हैपन। उसके अलावा एक और हमने देखा कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक 10% का एक्सपोर्ट इंसेंटिव आया। तो काफ़ी जो है फाइनेंशियल ये जो है पैसा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आया। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो क्राफ्ट सिटी में हमें नॉमिनेशन हासिल करने में मदद मिला, वो है मार्केटिंग।
तो आने वाले दिनों में हम बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे हमारा अभी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आ रहा है 14 नवंबर को, फिर उसके बाद सूरजकुंड में क्राफ्ट मेला हो रहा है और बैक टू बैक जो है एग्जीबिशंस हो रहे हैं। तो इसमें जो है काफ़ी हमें मदद मिलेगी कि आर्टिजन्स को हम कनेक्ट करें विद बायर्स। अल्टीमेटली जो हमारी कोशिश है आर्टिज़न को कनेक्ट करना विद द बायर्स, और जो है आज तक शायद ये जो आर्टिज़न है मार्जिनलाइज हुआ है, उसकी एक वजह है जो है मशीन इंटरवेंशन हुआ। तो मशीन इंटरवेंशन को नेगेट करने के लिए हमने एक मुफस्सल कैंपेन लॉन्च की जिसे GI के नाम से जाना जाता है। जोग्राफिकल इंडिकेटर 7 क्राफ्ट्स में हमारे GI है, और जिसमें पश्मीना है, सोजनी है, कानी है, फिर पेपरमैशे है, वॉलनट है, ख़त्मबंद है और कारपेट है। तो इसमें हम QR कोड ला रहे हैं। एक कैंपेन हमने चलाई, उससे क्या हुआ कि अब धीरे धीरे लोगों में ये अवेयरनेस जनरेट हुई कि अगर आपको पश्मीना शॉल ख़रीदना है तो GI कितना ज़रूरी है। आज के डेट में हमारी कैंपेन दिल्ली के FMs पे चल रही है। तो कोशिश यही है कि जो हम प्रॉमिस करें वो डिलीवर करें। ऑथेंटिसिटी पे जोर देने की ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन पे जोर देने की ज़रूरत है, और इस लिस्टिंग से हम ये पिच कर पाएंगे कि एक क्राफ्ट को आप मार्केट कर सकते हैं ग्लोबली। आज तक हमने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को टूरिज्म के हवाले से मार्केट किया है, परहैप्स दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू मार्केट अवर क्राफ्ट्स एज वेल, सो दैट वी आल्सो बिकम अ फोकस ऑफ द ग्लोबल जो फुटफॉल रहता है, और जो क्राफ्ट कॉन्सियर्स रहते हैं वो शायद इस वजह से यहाँ का रुख भी करेंगे। और ये हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि टाइप्स विद द यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी लीडिंग डिज़ाइनर्स हैं उनको हम यहाँ पे ला के अपने आर्टिजन्स की क्राफ्ट कैपेसिटी बिल्डिंग करें और नए टाइप्स करें, नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। थैंक जी यू। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद सलीम बेग है, मैं इंटैक से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ कोई 15 साल से काम कर रही है। माइक में आ रहा होगा यार, उनकी माइक में नहीं आ रहा होगा। एनीवे, तो मैं समझता हूँ इसमें जैसे बताया गया, अभी मेयर साहब ने भी, कमिश्नर साहब ने भी बताया, महमूद साहब ने भी आप कुछ प्रोग्राम बनाए। बुनियादी तौर पर इसके 2 डायमेंशन हैं। एक तो ग्लोबल डायमेंशन है। ग्लोबल डायमेंशन ये है कि यूनेस्को की लिस्टिंग जो है ये इंटरनेशनल है। इसका इम्पैक्ट ये है, उसका इम्पोर्ट ये है कि दुनिया में, जैसे आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता था, वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज रिकॉग्नाइज करता था, और एक वक्त में ये जो 2030 के सस्टेनेबल गोल्स आ गए, तब ये सोचा गया, समझा गया कि दुनिया में इससे ज़्यादा भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिनको रिकॉग्नाइज करना है, जिनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है या जिनकी तरफ से ध्यान देना है। और क्रिएटिविटी उसमें एक अहम मामला समझा गया। और क्रिएटिविटी में भी वो जगहें या वो चीज़ें जो यहाँ ट्रेडिशनली सस्टेनेबल रही है, चलती रही हैं। ऑब्वियसली जैसे अभी मेयर साहब ने भी फरमाया, श्रीनगर शहर में क्राफ्ट्स के बारे में वो दो राय नहीं है कि यहाँ का क्राफ्ट जो है ये क्वालिफाई करता है कि इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाए। जैसे अभी बताया गया, ये नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब है कि एक लर्निंग प्रोसेस है कि दुनिया में बाकी शहर, दुनिया बदल गई है, अब ये लोकल मामला ख़त्म हो गया, अब ग्लोबल मामले हैं, ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। जो अच्छा काम बाकी जगहों पर वो हो रहा है वो हमको पता चले ताकि हम इनसे सीख पाएँ या हमारा जो काम है वो सीख पाएँ। मुझे इससे, मैं ईमानदारी से ये कहूँगा कि एक और डायमेंशन है जो मुझे बहुत अहम लगता है, वो ये है कि यहाँ क्राफ्ट प्रमोशन या क्राफ्ट प्रोडक्शन ये कोई नई बात नहीं है। सरकारी इदारे, गैर सरकारी इदारे काम करते रहे हैं आज तक। जिस मेयार से भी वो जितना एफिशिएंट गवर्नमेंटल सिस्टम हो सकता है उस हिसाब से काम करते रहे। आज पहली बार ये है कि इस काम का एक, इसको कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक छत्र छाया मिल गई। वी हैव गॉट दिस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, या जिसको क्राफ्ट कहते हैं, ओन किया गया, एक ओनरशिप मिल गई। वो ओनरशिप श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, काउंसिल को दी गई। मुझे लगता है सबसे अहम रोल इनका ये है कि ये इसको पायलट करें। इसमें स्कीम जितनी भी हैं, इसमें कोई हवाई स्कीम नहीं है, इसमें कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया गया है जो हम नहीं कर सकते हैं। जितने एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो करना है वही दिशाएं इस डोजियर में जो हमने बनाया है दी गई है। मगर इसमें सुपरवाइजरी, गाइडेंस और डायरेक्शन
चेक करने के लिए, ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितना कुछ करना है, ये जिम्मेवारी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दी गई, जो पहली बार है। बाकी शहरों में, दुनिया के शहरों में ये चीज़ें होती हैं, हिंदुस्तान में कम ही होता है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि कुछ स्टेट्स ने म्यूनसिपैलिटी को बाईपास भी किया इस काम के लिए। उन्होंने कोई महकमे भी दिए, जैसे एमपी ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे दिया। तो हमें इस बात की खुशी है कि इलेक्टेड इदारों के हवाले वो काम किया गया ताकि पब्लिक के साथ एक इंटरफेस है। मुझे पूरी उम्मीद है जो यहाँ की यंग लीडरशिप है, डिपार्टमेंट्स में भी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल में भी, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। टेंजिबली अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्राफ्ट्समैन को क्या मिलेगा। क्राफ्ट प्रमोशन एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव सिलसिला है और उसमें रिकग्निशन पहली बात होती है। रिकग्निशन के बाद उस रिकग्निशन का ब्रांडिंग करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्राफ्ट वेलफेयर के लिए जो काम करने हैं वो होने चाहिए, यहाँ तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट बन चुके हैं, अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, इनको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट करके एक इदारा म्यूनसिपल काउंसिल का है जो इसको आगे चलाएगा। पीरियडिक रिव्यूज़ होंगे, वहाँ भी लोग देखेंगे, यहाँ भी ये इदारे देखेंगे और आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि एक विजिबल चेंज नज़र आएगा। एक सस्टेनेबल काम करना है, इसमें ये शुरुआत है। आगे जाके मुझे लगता है कि हम सारे लोग ये रियलाइज़ करेंगे ये एक बहुत बड़ा काम है जिसका पहला कदम आज उठाया गया। इफ्तिखार साहब हमारे चीफ टाउन प्लानर हैं और इससे पहले टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन से पहले जेके एरा में भी इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है और बहुत अहम रोल उस समय भी इनका रहा है। तो प्लीज़ इफ्तिखार साहब। अस्सलाम, शुक्रिया मेयर साहब, अतहर साहब, महमूद साहब एंड सलीम साहब का। बेसिकली अब ये तो दिस इज़ डे ऑफ सेलिब्रेशन कि we have got a platform जहाँ पे हम we can share our best practices with the best in the world। जो भी मानी हुई इस चीज़ें जिनके crafts recognized है at the UNESCO level, we can share our best, वो we can share with them and they can share with us their best practices। तो बेसिक काम है we have to strategize, जो हमारा जो craft है, creativity है, उसको strategize करना पड़ेगा for the economic, social and cultural development of the state of Srinagar। एक तो ये objective है। दूसरा ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, ये 2018 में इस पर थोड़ा सा कंसेप्शन आया था कि वी शुड ट्राई टू वर्क। श्रीनगर तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है एक क्राफ्ट्स की सिटी, यहाँ ऑलरेडी एवरीबडी नोज, लेकिन कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे वी कैन शो केस श्रीनगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स। तो 2018 में थोड़ा सा आइडिया मिला, उसी आइडिया को ट्रांसलेट करके JTFRP ने विच इज़ पार्ट ऑफ द JK एरा, जालिम तय्यूब फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट ने डोसियर वगैरह बनवाया थ्रू अ कंसल्टेंट विद द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, विद द सपोर्ट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। 2019 में सबमिट हो गया, वी फेल्ड, लेकिन फॉर्चुनेटली 2021 में फिर सबमिट हो गया, तो वी सक्सीडेड। तो वी शुड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म फॉर दिस। अब जो है स्मार्ट सिटी का काम है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का काम है, हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट का काम है कि एक कोहेरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क लाई जाए श्रीनगर में जिससे वी कैन यूज़ आवर क्रिएटिविटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ श्रीनगर। थैंक यू। जुनैद साहब, एक सवाल, ये जो यूनेस्को का प्रोजेक्ट है, सब बोलो, सस्टेनेबल गोल्स हैं इसमें 2030 उसमें सस्टेनेबल गोल्स के ताल्लुक से अगर हम बात करें, हमें क्राफ्टमैन फोक आर्ट मिला है इस प्रोजेक्ट में और हमने वादे भी बहुत किए हैं कि हम ये करेंगे। हमारे आर्टिजन की हाल आपसे मैं पूछता हूँ इसलिए कि आप आवाम के से डायरेक्ट आए हैं, ऑफिसर्स तो अपने लेवल पे बात करेंगे। हमारे आर्टिजन और फिर फोक आर्टिस्ट, इनकी जो हालत है, क्या आपको लगता है उसको हम ऊपर उठा पाएंगे इस प्रोजेक्ट? देखिए, बिल्कुल, अगर वो नहीं लगता तो इतनी मेहनत हम इस इंक्लूजन में नहीं करते। जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनका फोकस इसी बात पे है कि इन द कॉन्टेक्स्ट जहाँ आप स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, यू ऑल्सो हैव टू लुक एट सस्टेनेबिलिटी
and also have to look at conservation of art, culture and heritage. This is the concept, this is a step in that direction. We are also a smart city, लेकिन smart city के साथ एक dimension ये भी है कि हमें we have inherited a legacy in culture, in heritage, in buildings, in handicrafts. So हमें we have to take both on board. जहाँ तक there are a lot of there's a lot of scope for improvement as far as our artisans and craftsmen and their encouragement is concerned. I think we can have no better man at the helm for that than Mahmood Sahab. He understands both the inheritance of art and culture and also the vision for the future. There are issues as far as credit availability is concerned. There are issues about incubation. There are issues about pendency of artisan loans. Especially in pockets of inner city, जो artisan loan है, we need to take a policy decision on that. But let us celebrate this step collectively. I think this is a very positive day for the city of Srinagar. We are on the international map for something positive. Normally we are not on the international map for positive things. I think this is a rare occasion we are on the international map for a positive recognition. This is a big achievement for all of you, for the entire city. I don't know कि आप में से कौन बेहतर जवाब दे सकता है. स्मार्ट सिटी चाहे सड़कों पे पेंट करे या दीवारों पे पेंट करे, उसको हम जरा उसको साइड में ही करते हैं, वो शायद पार्ट ऑफ पार्सल इसका नहीं है. ड्यूरिंग पास्ट इसके क्योंकि वी हैव अ हाईली रिगार्ड फॉर सलीम साहब के साथ काम किया है, शायद नए लोगों को पता नहीं होगा. ये डोजियर्स पर ही मबनी रहता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके बाद कुछ काम भी होता है? बिकॉज ड्यूरिंग पास्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माई इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, सलीम साहब इज द आई विटनेस. यूनेस्को के साथ इससे पहले भी हम जुड़ चुके हैं थ्रू शालीमार का, या रिसेंटली जो MOU साइन हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट एंड JSW, जिंदल स्टील वर्क्स, to conserve the Mughal gardens. Out of 6 Mughal gardens, 2 have been selected. One is Nishat and one is Shalimar. उसके बाद हमें ग्राउंड लेवल पर काम देखने को नहीं मिलता है, या शायद फिर हमारी नज़र नहीं है? शायद आपकी नज़र नहीं है. काम बहुत हो रहा है शहर में. देखिए, ये बड़ा तनकीद हमेशा वी वेलकम इट. क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम. But for what Srinagar city has gone through, I'll tell you that I as a mayor will encourage every positive intention. Every positive intention will not result in an ideal consequence. But positive intentions have to be encouraged. ये बड़ा आसान कहना है कि दीवारों पे वॉल म्यूरल्स क्यों बन रहे हैं. जब ड्राइव करते हैं लगता है कि पॉजिटिविटी है. वॉल म्यूरल से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता. स्पेस पेंटिंग से आपका, हमें भी वो पता है, वो इनको भी पता थी बहुत पढ़े लिखने की, वो रंग उड़ जाएगा बारिश से. बट वो एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे बच्चे, स्टेक होल्डर्स सब मिलके एक स्पेस, ये हर एक जगह पूरी दुनिया में होता है, वहाँ चौक से बनाते हैं फिर धुल ही जाता है. वी हैव टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन दीज इनिशिएटिव्स. शालीमार का आपको सलीम साहब बताएंगे, यूनेस्को का भी बताएंगे, बट 2 में तो विद जिंदल देयर इज अ टाई अप. शालीमार और निशात का शायद, I think the work is already started for conservation. Let us be positive. और आप इतने पॉजिटिव हैं, मैं आपको 15 साल से जानता हूँ. आप जैसा मेरा कोई पॉजिटिव दोस्त ही नहीं है. The most positive man in Srinagar. I mean that without any sarcasm. हम सबके दोस्त ही हैं. हाँ. और पॉजिटिव बहुत हैं. मैटर ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द आर्टिजन आल्सो. And you are very optimistic. जो कसमपुर्सी की हालत में रह रहे हैं. ये मुझे एक सेकंड, ये मुझे पता नहीं है आपके साथ साथ फंस क्यों रहे. You are very positive and a lot of positive things will happen in Srinagar. We assure you, a lot of positive things are happening in Srinagar, will happening in Srinagar. अब आमतौर पे we don't blow the trumpet in terms of works that have happened in Srinagar at the grassroots level. In terms of the fact we have grown from 457th rank in sanitation to top 30. Now we are, our next aim is to come in the top 10. Now we are also aiming at door-to-door collection of waste. A lot of good things are happening, and with your positivity and those like-minded like you will attain it. सलीम साहब को बोलने दीजिए, पहले वो शालीमार का बोलेंगे. नहीं, इन्होंने पूछा था कि ये प्रोग्राम जो है ये डोजियर तक ही महदूद रहेगा. दैट वाज योर क्वेश्चन. तो मैं आपको बता दूं, ये जो डोजियर है ये प्रोग्राम बेस्ड है. प्रोग्राम बेस्ड मतलब ये होता है कि आपने टेंजिबली बताना है.
कि आप क्या क्या करेंगे, कोई वर्बोस इसमें नहीं है। हमने जो टारगेट्स दिए हैं ये वो टारगेट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने या यूटी ने पहले ही एक्सेप्ट किए हैं। हमने बिल्कुल ये नहीं Signed कहा on कि them. हम यहाँ ताजमहल बनाएंगे। हमने कहा कि आर्टिजन्स को हम कंसोलिडेट करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। हमने कहा कि ब्रांडिंग करेंगे। हमने कहा कि रेशम खाना में रीअडेप्ट करेंगे उस स्पेस को, एक कल्चरल स्पेस बनाएंगे। हमने कहा कि एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी मेयर साहब ने आपको बताया 1 महीना एग्जीबिशंस रोकेंगे आर्टिजन्स को जोड़ इंटीग्रेट करने के लिए विद मनी प्रोग्राम। उनका डिज़ाइन डेवलपमेंट का इशू है, रॉ मटेरियल का इशू है, स्किल्स के इशूज़ है, सोशल सिक्योरिटी के इशूज़ है। ये चीज़ें वहीं से निकलेंगी। ये डोजियर जो है ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, ये डोजियर कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। इसमें पॉजिटिविटी के साथ साथ टेंजिबल एक्शंस हैं। इसके लिए मैं आप बेफिक्र रहें। इसमें कमिटमेंट्स की गई हैं और जो वो कमिटमेंट्स हैं जो मॉनिटर होंगी फाइनेंशियल साइड में भी और फिजिकल साइड में भी। आप बेफिक्र रहें। सर आई हैव 2 क्वेश्चंस, वन फॉर सर। आपने कहा 7 कैटेगरीज है जहाँ पर सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फॉर्म्स आर्ट भी है और उसमें मीडिया भी है और प्लस फिल्म इंडस्ट्री का भी है। तो आपको नहीं लगता यहाँ का मीडिया उभर सकता है यूनेस्को के? व्हाई नॉट? तो व्हाई डिडंट यू गिव प्रेफरेंस टू द मीडिया? दोनों चीज़ें हैं कि जिस अलग अलग कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर गेस्ट्रोनॉमी है, हैदराबाद इज़ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में एज गेस्ट्रोनॉमी में। हमारा भी वाजवान, हमारा भी कलनरी, हमारा भी जो फूड है यहाँ पे कुजीन है, इट इज़ वर्ल्ड फेमस। इस वी कैन अटेम्प्ट फॉर ट्राइंग टू इंक्लूड दैट श्रीनगर इन दैट कैटेगरी एज वेल। तो इट अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट, ये किसी क्राफ्ट की, सिर्फ एक क्राफ्ट की रिकग्निशन नहीं है, या सिर्फ एक क्राफ्ट्समैन या किसी एक आर्ट की रिकग्निशन नहीं है। द सिटी बिकम्स पार्ट ऑफ द नेटवर्क। और नेटवर्क का जो सेंट्रल एजेंडा है दैट ऑल दी सिटीज दे टेक क्रिएटिविटी एज द सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे हमारे एक साथी ने भी पूछा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने हैं, देयर इज SDG 11 जो सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में बताता है। तो वही दैट इज़ अगेन दिस होल कॉन्सेप्ट डिराइव्स फ्रॉम दैट SDG 11 कि सस्टेनेबल सिटीज़ कैसे बनाएं। तो देयर इज़ नथिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम प्रमोटिंग और फ्रॉम डेवलपिंग अदर सिटी इन अदर categories. Sir, another She has one more question. Sir, question is like this. We know we people are living over here, जहाँ पर continuous lockdowns की बात होती है, तो उस हवाले से आप लोगों ने कोई ऐसी स्कीम रखी है कि अगर 3-4 महीने फिर से कोई लॉकडाउन हो गया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और एनी अदर सिचुएशन लाइक, तो उस टाइम इस क्राफ्ट और आर्ट को लेके कोई ऐसी स्कीम होगी जो इनके अपलिफ्ट में उनके काम आएगी? हाँ, इसमें 2-4 चीज़ें, जैसे अभी भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जो है, इट्स एन अनफोर्सीन सिचुएशन एंड इट अफेक्ट्स ऑल दी सेक्टर्स। चाहे हमारा टूरिज्म, सिटी का जो इकोनॉमी है, इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। सेम कोर्स हमारे हैंडी जो क्राफ्ट्समैन है, देयर आर अराउंड 40,000 लोग हैं हमारे शहर में, जो लगभग 10% हमारे जो सिटी के GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं, विच आर डीलिंग विद दिस। तो हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट, जैसे महमूद साहब ने अभी बताया था, नंबर ऑफ दीज प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स जो इनको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारा स्मार्ट सिटी में भी वी हैव वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट in this side. Now this, जैसे मेयर साहब ने भी बताया, जैसे सलीम साहब ने बताया, it may not be directly related to some kind of poverty elevation, but they are in one way or the other linked to promotion of these crafts. We are working on, हम लोग jointly अभी कोशिश कर रहे हैं, we want to develop one international craft exhibition center here. हमने स्मार्ट सिटी में उसके लिए फंड एलोकेशन भी की है. Right now we are vigorously hunting for space कि कहाँ पे उसको डेवलप किया जाए. देयर इज क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट उसको टेकअप करता है, उसकी अपग्रेडेशन का काम पहले ही चल रहा है. इसी के साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशनली श्रीनगर में जो क्राफ्ट्स रहे हैं, दे आर क्लस्टर बेस्ड, एरिया बेस्ड. कहाँ एरिया यथ में त्राम कम ज़्यादा गसान, कहाँ एरिया यथ में कारपेट का काम ज़्यादा हो रहा है. सो शहर खास में जिसको स्मार्ट सिटी में भी हमारा ABD एरिया है, उसके जितने भी हिस्टोरिकल मार्केट्स हैं उनकी वापस अपग्रेडेशन, वहाँ जो हमारे रिवर फ्रंट है डाउनटाउन में हमारे घाट्स, उन सब की वापस अपग्रेडेशन, ताकि उन एरियाज़ को वापस से रिवाइव कर सकें. कि न कि दोनों तरीक़ों से, कि बाहर से भी जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आता है, दे शुड नो विच प्लेस टू गो एंड दे शुड फील गुड एंड प्राउड टू गो टू दैट प्लेस. इसी तरह से जो हमारे क्राफ्ट्स हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो क्राफ्ट्स हैं, जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट है, दिस गेट्स अ डिग्निफाइड पोजीशन अक्रॉस द ग्लोब. इसका मार्केट का और बढ़ावा हो सके. एक सेकंड, I'll come to you. स्मार्ट सिटी का बोला ना श्रीनगर,
Just one स्मार्ट question सिटी में for आते this. हैं। सर पिछले साल यहाँ बहुत बर्फबारी हुई तो लोगों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, तो इस साल आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? और आपने अभी शहरी खास का नाम 5-10 बार मेंशन किया, तो अगर आप शाम को वहाँ से जाएंगे, वहाँ से आप देखिए फॉल स्मॉल कैसी आती है वहाँ से, बिकॉज ऑफ जो जूनीपर में डंप साइट है, तो उसके लिए एसएमसी क्या कर रही है? Let's answer those questions. I think इसको I'll make a request. We will speak about those issues separately. This event is primarily about this. He'll, Firsab I'll will just because answer you it. have Sir, the questions pertaining to this event have been finished. Now there are some other issues we want to take. That we'll again meet next week. Okay, sir. Thank you. ठीक है। वो कार्ड का Your answer, let's आपसे वो कार्ड का कुछ बताएंगे? फंक्शन होती है, हम वो बेचारे आप एक बार भांडों को बुलाते हैं। ये let's see, we have nothing to hide, so we should answer See, this question. दो तीन चीज़ें। एक तो सबसे पहले स्मार्ट सिटी के, आई थिंक समबडी मेड अ कमेंट आल्सो कि पेंट करते हैं साइड में दीवार में। See, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, चाहे स्मार्ट सिटी है, हर किसी एजेंसी का, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मैंडेट होता है। स्मार्ट सिटी का भी एक ब्रॉडर मैंडेट है। उसमें हमने जो हमारी जो श्रीनगर सिटी का प्लान है, इसमें 8 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी उसमें है हमारा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एक है अर्बन मोबिलिटी, जंक्शन इम्प्रूवमेंट, वॉकवेज इम्प्रूवमेंट, पेडिस्टनाइजेशन ऑफ द सिटी, एक है उसमें आईटी बेस्ड, जिसमें हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहा है एचएमटी में, एक श्रीनगर डेटा नेटवर्क है। इसी तरह से एक उसमें हेरिटेज कंपोनेंट है, एक उसमें ग्रीन श्रीनगर का कंपोनेंट है, एक सिटी ब्यूटिफिकेशन एंड एस्थेटिक्स का कंपोनेंट है। इन सभी अलग अलग 8 जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनमें पैरेलली काम चल रहा है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अक्सर बेशतर हमारी प्रोजेक्ट्स दे आर ईदर इन दी कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज और इन टेंडरिंग स्टेज। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बड़े जो हम एग्जीक्यूट इस समय कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट अभी हमारा एग्जीक्यूशन में है, दैट इज़ ICCC, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो HMT में बन रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ सेंट्रल अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर IT नेटवर्क, IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी। इसके साथ साथ हम शहर में एक 175 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क खुद का बना रहे हैं, जिससे जितने भी ट्रैफिक लाइट्स हैं, जितने भी जंक्शंस हैं, जितने भी मेजर इंस्टॉलेशंस हैं, CCTVs हैं, दे गेट ऑल कनेक्टेड, कि किसी भी परिस्थिति में शहर का कोई भी पब्लिक सर्विस डिफंक्ट नहीं हो। सो IT सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसमें काम हो रहा है। इसी के साथ जैसे बटमालू एरिया है, बटमालू यूज्ड टू बी द सेंट्रल हब इन द सिटी। इसमें एक सेक्टर 6 है, कॉर्नर में हमारी एक आइडेंटिफाइड लैंड है, वहाँ पे हम लोग हेरिटेज या जहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स, हैंडीक्राफ्ट्स प्लस एक चौपाटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे 2 रोड्स हैं, इनके साथ में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा CBD एरिया है, जो लाल चौक का एरिया है, उसकी उसमें प्रोजेक्ट्स हैं। सो द प्रोजेक्ट्स आर स्प्रेड along different categories. पेंटिंग या एस्थेटिक्स, इट इज़ जस्ट वन स्मॉल कंपोनेंट इन द प्रोजेक्ट। कि कहीं हमारी पब्लिक स्पेस वॉल होती है, अच्छा लगता है अगर इस वॉल पे पेंट किया हो, इसमें आर्ट किया हो, या हमारे जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो इसको शोकेस कर सकें। इसी तरह से कुछ छोटे छोटे प्लेस मेकिंग इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप कहीं जगह बैठ के यू डू सम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स। सो इसको कभी भी, दिस वुड बी एब्सोल्युटली फ्लॉड लॉजिक ये सोच के कि फलां जगह पे ड्रेन नहीं है लेकिन यहाँ पेंट कर रहे हो। दिस इज बीइंग डन विद ए सेपरेट पर्पस। इसका एक सेपरेट मुद्दा मकसद होता है, सेपरेट पर्पस होता है, दैट उसके लिए भी अलग एजेंसीज हैं, अलग प्रक्रिया है विच टेक्स केयर ऑफ इट। Mr. Umar, you are not a civil service officer, but you are not stupid either. This is what something you have said earlier. Now, sir, my question to you is that the applicants seeking permission for the construction of residential houses are asked to obtain NOCs from their neighbors. Under which provision you are asking them? This is happening under your mayorship. As far as I'm aware, there is no such provision that you have to seek NOCs from neighbors. You have to seek NOCs, so it's a detailed process. And you know, I have spoken at length about my reservations about that issue. I don't want to add to it, but I, you know, as a public representative of Srinagar, would want that people are inconvenienced very less. That people who opt and volunteer to apply for permission before constructing are incentivized rather than disincentivized. Sir, I'll just add to this. ये बिल्डिंग परमिशन का जो सिस्टम है, इट हैज बीन completely made online in Srinagar city. But sir, We very don't tough for the applicant. it is not tough. Sir, It unnecessary is documents are being no sought. no.
right now in Is there past any provision to seek the NOC from मैं the वही चीज़ बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश। उसके बाद सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन किया गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर एनीबडी टू कम हियर फिजिकली, ऑल एप्लीकेशंस आर कमिंग ऑनलाइन नाउ, ऑल द न्यू एप्लीकेशंस इन पास्ट 3 months आर कमिंग ऑनलाइन ओनली। उसमें क्या क्या आपको अपलोड करना होता है वो अपलोड करते हैं। एनओसीज जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास होती हैं, वी सेंड दोज एनओसीज ऑल्सो ऑनलाइन। वी हैव गिवन लॉगिन आईडीज टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, वेदर इट इज़ ACR, वेदर इट्स AC नजूल, वेदर इट्स इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, वेदर इट जिस भी डिपार्टमेंट की एनओसी ज़रूरत होती है उनको हमने लॉगिन ID पासवर्ड उसी सिस्टम की दी हुई है। दे सेंड दोज एनओसीज टू अस ऑनलाइन, नंबर 1। नंबर 2, विथ माई डैशबोर्ड आई एम एबल टू सी किस जब फाइल एप्लीकेशन कब हुई, आप भी खुद उसको ट्रैक कर सकते हैं किसके पास में वो एप्लीकेशन पड़ी है। एंड वी आर नॉट अलाउइंग इन इवन ए सिंगल एप्लीकेशन टू बी अनड्यूली केप्ट पेंडिंग, नंबर 1। अब NOCs की बात है, दिस में भी कोई अगर किसी स्पेसिफिक केस में पूछा गया हो, देयर कुड बी कि क्या रीज़न है किसी केस में, दैट कुड बी सीन। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा एक मास्टर प्लान बना हुआ था, जिस मास्टर प्लान जो गाइड करता था श्रीनगर सिटी में बिल्डिंग परमिशन किस हिसाब से दिए जाएं। इसके साथ साथ हमारे बिल्डिंग बायलॉज बने थे जो काफ़ी कंजर्वेटिव बिल्डिंग बायलॉज थे। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड देना है नहीं देना है, आप नहीं दे सकते, उसमें काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस, सेटबैक्स क्या हो सकती हैं, छोटा प्लॉट है उसमें भी सेम अप्लाई होता है, बड़े प्लॉट में भी सेम अप्लाई होता है। सो दिस was a big anomaly and one of the major reasons why lot of inconvenience was also faced. Fortunately now new building bylaws unified which are applicable to Jammu also, which are applicable to Srinagar also, and all the municipalities, they have been notified and Municipal Corporation Srinagar has already adopted those bylaws. उस bylaws में proper categorization है कि किस साइज का प्लॉट अगर है, किस एरिया में है, उसमें क्या क्या हो सकता है, अगर रिलैक्सेशन देनी है किस रिलैक्सेशन तक हो सकती है। नाउ जहाँ तक ये आपका कोई पर्टिकुलर केस है, किसी में NOC मांगी गई है, आई वुड नीड द स्पेसिफिक्स ऑफ इट, आई विल सी अगर कोई रीजन है वी कैन थैंक यू सर, थैंक यू सर। अतर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि सिटी डेवलपमेंट प्लान के लिए जो 50 करोड़ रुपए आए हैं वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ। दूसरा मैग्नेमाइजेशन का 20 करोड़ के जो रुपए हैं वो भी लैप्स हुए इस साल में, और 90 करोड़ जो SMC को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मिला है वो भी अनस्पेंडेड है। तो ये कब फाइनलाइज होगा? I'll take the liberty of answer this. मुझे पता, हाँ नहीं मैं I'll answer this. मुझे पता है कि मुझे ये लेकिन जुतमुर बोझ में मेन जवाब तो बोझ किसने बोझ। Is it important to waste money and throw it on the road or spend it systematically? We all live in this city. This city for 40 years has suffered because of bad planning. एक शहर खास या इस वनान मार्चस मज लगान वजि रंगच टर्न, अक्टूबरस मज लेदर रंगच तथ लगान। We will not allow the exchequer's money to be wasted. This city till now did not have a drainage master plan. आप कहते हैं जी ड्रेनेज, कल एक साहब ने ये भी पूछा था कि ड्रेनेज का जी 2.5 करोड़ पेंडिंग है, वो स्पेंड क्यों नहीं किया। We took an initiative for the first time in 70 years to make Srinagar's first drainage master plan. कि ड्रेन बने कैसे, it's like a nervous system. Drain is a nervous system. It has to be integrated, it has to be cohesive, it has to be holistic. हम एक मोहल्ले में एक साल ड्रेन बनाते थे, दूसरे मोहल्ले में दूसरे साल बनाते थे, वो 3 करोड़ भी जाया, ये 3 करोड़ भी जाया, ना उसका आउटफॉल ना इसका आउटफॉल। We are making a drainage master plan. Every penny we spend on drainage will be spent systematically. आपने कैपेक्स की बात की, कोई पैसा लैप्स नहीं हो रहा है। सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की, we are categorizing that, we are in constant touch with the administration on how to utilize it fully. Every penny in Srinagar Municipal Corporation that will be spent under my watch, both as the mayor and the chairman of the executive, will not be spent under blackmail. It will be spent as if we are accountable for every single penny. वो जो ट्रेडिशनल ये होता था ना, पैसा ज़ाया करना वतन पे, मुझे पता है ना, लोगों ने मुझे चुना, आपको अगर चुना होता आप यहाँ बैठे होते। आई एम अकाउंटेबल टू द पीपल। मेरी बात सुनो, I know what the people expect. The people expect accountability, transparency and proper development. Not spending of money just to spend money. That we have done enough for 70 years. I am proud of the way Srinagar Municipal Corporation is functioning. I am proud of the way the officers are working, the Commissioner's office is working, and as a team we are going to develop transparent. ये जो सारी ये है ना, these are all factually incorrect distortions. इसमें जी इतना है, इसमें unspent also means theft from we will not allow anything to go unspent. But at the same time, we will not waste the exchequer's money on improperly planned and improperly conceived works जो पहले होता था. Everything will be properly planned,
properly conceived. That is my assurance as the mayor. Nothing will remain unspent. मुझे एक गुजारिश, ड्रेनेज का आपने जिक्र किया, अब लंबा हो ही गया। एरा ड्रेनेज करती है, हमारी म्यूनसिपैलिटी का भी एक प्रोजेक्ट है ड्रेनेज करती है। एक एरिया में एरा ने या एक मोहल्ले के नुक्कड़ पे लाई ड्रेन ला के एरिया को बीच में छोड़ दिया। इट हैपेंड विद वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट ऑल्सो। बीच में पॉकेट छोड़ दी। अब उनको कनेक्ट करने के लिए बहुत परेशानी है। एक इलाके में उधर से ड्रेन बनी है, इधर से यहाँ नुक्कड़ पे लाके छोड़ दी है। अब उसको आप अगर काम करेंगे बीच में, उसका वो नर्वस सिस्टम जो आपने कहा, उसमें स्टंट डालने पड़ेंगे, वो स्टंट पड़ेंगे नहीं। देखिए, जो ड्रेनेज मास्टर प्लान का विजन, when I proposed this, and I remember when we had the first discussion about this, it centered around the fact that let us first analyze what our deficiencies are, what is the existing status of our drains, कितनी congested हैं, कितनी functional हैं, कितनी, how many of them are working as sewers now, and how many are stormwater drains. What do we need to add, what do we need to modify? And the drainage master plan is in process. I think one of the segments has been completed, it is being presented, concept plan is being presented. We are one of the only cities in the country which will have a drainage master plan now for the next 35 years. लगभग 1532 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क पूरा बनाना है, 530-540 का बना हुआ है. It's a huge gap because the city has extended towards low-lying areas. और low-lying areas में आप ये चीज़ appreciate करें, ड्रेनेज बनाना बहुत मुश्किल होता है. You know, draining a low-lying area is very hard. There is no gravity drainage. Then how many dewatering facilities will you make? But we are working on it scientifically and systematically, and we assure you that every single work that we execute will be validated by the public as a quality work for the coming decades. ये नहीं है कि हमने जी कर दिया, push पे hold she and you go spend, you gave me capex. Capex क्या आसान by the way? हाँ बताइए, तो यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप किस कैपेक्स की बात कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन वैसे सुनो मुझे पता है आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है. Capex, state capex, we take it as a responsibility that we have to spend it properly. I think alhamdulillah all of us are educated. Everybody at the helm is educated enough to know how to spend money. और एक ये परसों एक और तोहमत हो गई, देखिए जी ये 2.5 करोड़ स्पेंड नहीं किया है, करप्शन है. ये तो पहली बात है कि पैसा स्पेंड नहीं किया तो करप्शन है. We are working very systematically. I know the distractions. I know people who don't want this to be done. But I assure you, as the head of this corporation, every single penny will be spent transparently and diligently. Thank you, sir.